afternoon to everyone. So, before starting today's session, let us welcome to our guest speaker of this session, Mr. Naman Arora. He is an industry expert of digital marketing in different domains like SEO, social media marketing, content marketing, and performance marketing. And apart from this, he is also working as a senior manager at Centum Learning. And he has so many expertise in different fields like digital marketing domains like SEO and lead generation, and he has a wide experience of more than 7 years in different fields. So in today's session he is going to share his feedback, his career feedback or experience with us so that we can learn more from him. So it's over to you, Naman. You can share your experience and you can just tell our students what are the different, career opportunities and the challenges in digital marketing. So you can go ahead and Sure. share your experience with us. Yeah, thank you so much. Sure. Thanks. Can you see my screen? Yeah, it's visible. Okay. So, hi guys. Great to chat with the students of CPS. And as Yamini had already given such a great introduction. So I'm Naman Arora. I handle digital marketing for a company called Centum Learning. Centum Learning is part of Bharti Group, and it's a training company basically for corporate training. And my job role over there is basically lead generation to online sources. That's my main role, as well as brand development campaigns for the organization. So, about today's topic, uh, we are to discuss the opportunities and challenges in digital marketing. So, basically, what we're going to talk about is I'm going to give a brief my opinion on digital marketing, as well as I think I'm seeing some message from Abdul that sound is not coming. Yamini, can you hear me? Yes, we can hear you. I'm getting your voice. Yeah. Oh, okay, great. Yeah. I think Abdul, you might need to fix something at your speakers and maybe. Uh, oh, I'm sorry, I can't Abdul, hear you are you. not audible to us. You are not audible to us. Maybe some issues with the mic. You can rejoin us. You can just disconnect and reconnect Yeah, I think you should disconnect and rejoin. That would be okay. us. Let's see. Yeah. So, so I'll continue. As I was suggesting, basically, I'll share my perspectives on digital marketing, and one important thing what you would want to know is what kind of opportunities are there, what kind of options you have in digital marketing. And as like anything, everything does not have a rosy picture. So there are some challenges and some things which need to be, I believe, somebody must have if they want to have a career in digital marketing. So I'll move on to my presentation. Yeah. So my first slide, which I want to talk about, is why do you think digital marketing is a good option? Why are companies so interested in digital marketing? आजकल इतना interest क्यों है traditional marketing के ऊपर? So some important points which I'd like to talk about is that first of all, इससे I mean the cost factor. And in terms of not just मतलब you can run traditional marketing campaigns for much more cheaper prices, but in the end जितना effect digital marketing से आता है उस cost में traditional marketing cannot compete. Uh, there are so many options where honestly you don't even require to spend a dime. मतलब आपको बिल्कुल ही पैसा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं होती. जैसे SEO होता है और कंटेंट मार्केटिंग होता है, उसमें अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो इट कुड क्वाइट कम आउट एज फ्री आल्सो. सो digital marketing, one major advantage is that the cost of this is quite low. That's why companies are interested. uh, in continuation with that, obviously cost अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपका ज़्यादा होगा इसमें. तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स के केस में बहुत अच्छा होता है. तो इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम में और इतने कम पैसों में पहुंचना और उससे रिटर्न पाना, आई डोंट थिंक ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये दे सकता है.
इजी टू मेजर आपने पढ़ा होगा अपने इसमें गूगल एनालिटिक्स का है। जितना ट्रैकिंग आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, द काइंड ऑफ ट्रैकिंग यू कैन डू इन डिजिटल मार्केटिंग, इट कैन नॉट बी कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप एक कैंपेन भी चलाते हैं, तो उसमें आप जैसे बैनर लगाते हैं, तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कितने लोग आपका बैनर देख रहे हैं। उनके बाइंग डिसीजन के इन्फ्लुएंस का आपको आइडिया नहीं पता लगता है। और बट इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन मेजर एवरीथिंग अबाउट द कस्टमर। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट माय ऑडियंस राइट नाउ, बट इफ यू the kind of measurement you can do in digital marketing is amazing. If you would have, आप जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ट्रैकिंग चलता है आप पीछे, आपको ऐड दिखाने के पीछे कितने सारे आप होते हैं, वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसके बेसिस पे आपको इजी टू एडजस्ट एंड एडिट से मेरा मतलब ये है कि कोई भी कैंपेन को चेंज करना, एडिट्स करना, सब मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक बैनर आप लगाते हैं कहीं पर, तो वो बैनर जो है मतलब आप बेसिकली उसको एक बार ही लगाने के बाद चेंज करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। बट डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके केस में कुछ काम नहीं कर रहा है, अगर आपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था तन्मय भट्ट का, तो तन्मय भट्ट ने उसमें बताया था कि उसने अपने वीडियो के अंदर अगर वो काम नहीं करता है तो पहले 5 मिनट में वो मतलब उसको 4 या 5 उसके ऑप्शन ट्राई करता है। तो आपको टाइटल जो है ना उसका यूट्यूब के वीडियोस का वो चेंज होते हुए दिखेगा आपको कभी, आप स्टार्टिंग में अगर उसका देखोगे तो बेसिकली वो ट्राई आउट करते रहते हैं अलग अलग टाइटल्स, और जो उसमें सबसे ज्यादा काम करता है वो फाइनल टाइटल हो जाता है उसके यूट्यूब। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आप कंटेंट मार्केटिंग होता है, यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो हर समय आपके सिस्टम पे, मतलब कोई भी जाके बाद में भी देख सकता है। तो इसलिए ब्रांड डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। कंटेंट मार्केटिंग, यू मस्ट हैव रेड पीपल, एनीबडी स्पेंडिंग टाइम टू रीड एनी आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, स्पेंडिंग 5 मिनट्स और 6 मिनट्स रीडिंग एन आर्टिकल, आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। सो यू नो, brand development, I would say it's very effective. Although in this traditional marketing also plays a good role, but you must use digital marketing. You can't ignore digital marketing जब आपको brand development करना होता है अपनी organization। जैसे मैंने बोला था आपको प्रिसाइज टारगेटिंग होता है इसमें। सोशल मीडिया एड्स, अगर आपने फेसबुक का कभी प्लेटफॉर्म देखा है, ऑल्दो अभी उसमें थोड़े से चेंजेस उन्होंने कर दिए कि टारगेटिंग आप उतनी कर नहीं सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल लिंक्डइन का आपको लेता हूँ, तो लिंक्डइन में आप लिटरली 100 लोगों का ऑडियंस, मेरे ख्याल से मिनिमम इज आई थिंक 200 पीपल का आप ऑडियंस बना के आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत स्पेसिफिक जाकर लिंक्डइन में भी अगर आपको ऐड चलाना है सिर्फ ईमेल के बेसिस पे, मतलब मैं अगर इतना उसमें अलाउड होता है कि मैं अगर लोगों का एक ईमेल आईडी डाल दूं तो वो स्पेसिफिक लोगों को ही ऐड दिखे, ये भी पॉसिबल होता है लिंक्डइन में। ऑल्दो उसमें थोड़े लिमिटेशंस होते हैं, 200-300 लोग कम से कम होने चाहिए उसके अंदर, और वो ईमेल जो होता है लिंक्डइन प्रोफाइल से मैच होना चाहिए। बट ऐसा प्रिसाइज टारगेटिंग सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिल सकता है। ग्लोबल रीच इज देयर। जितना रीच आप डिजिटल मार्केटिंग से अचीव कर सकते हो, मैं यहाँ से बैठ के यूएस की सारी ऑडियंस को एड्स दिखा सकता हूँ। ग्लोबल रीच आपको डिजिटल मार्केटिंग देखता है। सेगमेंटेशन के ऑप्शंस होते हैं, एक आदमी को एक टाइप का ऐड दिखाओ, दूसरे आदमी को दूसरे टाइप का ऐड दिखाओ, ये चीज आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कभी नहीं मिलेगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलेगी। एंगेजमेंट जो होती है इससे आप अचीव कर सकते हैं, ऑल्दो एंगेजमेंट में आई थिंक ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी थोड़ा अच्छा है, बट एंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, आपका इंटरेक्शंस जो होते हैं, आप जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठ के आप लोगों के साथ में वेबिनार कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे ऑप्शंस मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में मिलते हैं। A/B testing opportunities, I hope you guys would know what is A/B testing. Yeah, so A/B testing opportunities are not available. A/B testing, if for the people who might not know, A/B testing is basically where there is an A version of, मतलब आप दो वर्जन जो होते हैं, एक एड के या एक लैंडिंग पेज के आप ट्राई करते हो, तो उसमें बेसिकली सिस्टम को आप बोल देते हो कि जो इसमें बेटर वाला ऑप्शन है वो उसको फाइनली आप ऐड चलाओ। तो आप एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो स्टार्टिंग में, तो वो एक्सपेरिमेंट का आप टाइम सेट करते हो कि हाफ एन आवर के लिए एक्सपेरिमेंट चलेगा और अपने आप ही सिस्टम जो है
वो फेसबुक हो या ईमेल मार्केटिंग हो, जो भी आप टूल यूज करते हो वो उसके अंदर ए बी टेस्टिंग करके वो जो ऑडियंस को ज्यादा सूट कर रहा है वो वाला क्रिएटिव चलाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें अमेजोन बहुत माहिर है ए बी टेस्टिंग के अंदर। अमेजोन के सीईओ ने बोला था कि वो कभी भी ज्यादा सोचते नहीं है अपने कैंपेन्स को लेकर, उनका सारा काम ए बी टेस्टिंग से ही चलता है। अगर उनको 2 या 3 आइडियाज लगते हैं तो कोई रिसर्च नहीं, उनका यही होता है, वो 3-4 कैंपेन चलाएंगे, उनमें से एक जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसी को ही वो फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी क्विक टू एग्जीक्यूट, मतलब क्रिएटिव बनाना टू पब्लिशिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी इजी। मैं लिटरली मेरे को आई थिंक कोई कैंपेन चलाना हो तो 5 मिनट्स में मैं चला सकता हूँ, और 2-3 घंटे में 1000 लोगों के पास पहुंच सकता है मेरा एडवर्टाइजमेंट। सो this is one of the reasons why digital marketing is growing, and this also amplifies the fact कि इसके अंदर opportunity इतनी ज़्यादा क्यों है, because दुनिया इसको इतना पसंद क्यों करे। So yeah, so this is my slide on why digital marketing over traditional marketing. If you guys have any questions, please आप मेरे को रोक कर जो है please interrupt कर सकते हो, there is no problem with me. I'll move on to the next slide. Yeah. So here are some career options which are available in digital marketing, और the best part is इसके अंदर employment भी बहुत generate होती है, because बहुत सारे roles हैं जो कर सकते हैं। Obviously हर company में इतने roles available नहीं होते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके साइज और बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही आदमी बहुत सारे रोल्स कर रहा होता है, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही बंदा सारे रोल्स भी कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली काफ़ी इन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें जॉब रोल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जिसके आप जा सकते हो। तो we'll start with the first one, which is basically I'm talking about SEO. You must have, I think, read and worked on SEO in your classes. SEO में basically what I want to describe to you guys is कि क्या आपके skill sets मेरे हिसाब से होने चाहिए किसी को अगर SEO में pursue करना है। तो वन इज मेरे को लगता है आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यूरेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए अगर आप SEO में रोल करना चाहते हो। तो आपको हो सकता है लिखने की जरूरत ना पड़े, बट आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि कंटेंट अच्छा वाला क्या वर्क करेगा मेरी ऑडियंस के साथ, और आपको राइटर को कैसे एडिट कराना है, कैसे उससे लिखवाना है, ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। SEO एक्चुअली ना बहुत डिफरेंट हो गया है। अगर आप देखें तो जब 10 साल पहले या मतलब जब मैंने प्रॉब्ली 7-8 साल पहले स्टार्ट किया था, तब इसमें थोड़ा काम इतना होता नहीं था राइटिंग का, मोर अबाउट मतलब मोर अबाउट जस्ट इनपुट ही होता था इसके अंदर कि इंजीनियर्स और ये लोग मिलके SEO का काम करते थे। तो उसमें वो बैकलिंक्स हो, कीवर्ड स्टफिंग हो, ऐसी चीजें करनी होती थी। तो उस केस में ना राइटिंग की क्वालिटी पे इतना फोकस होता नहीं था, इट वाज मोर अबाउट कि आप कितने कीवर्ड्स डाल रहे हो अपने कंटेंट में और कितने बैकलिंक्स आप जनरेट कर पा रहे हो। अब अगर आप देखो तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कंटेंट, आपका रेपुटेशन क्या है एक फील्ड के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। एज लॉन्ग विद दैट थोड़ा टेक्निकल पार्ट उसके अंदर ये जरूर होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस हो पा रहा है, आपका पेज कैसा दिखता है, आप कैसे उसको स्पीड, कितनी स्पीड में आप लोड कर पा रहे हो, ये सब चीजें थोड़ी टेक्नोलॉजी की इसमें चलती हैं। तो एज पर मी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यूरेशन, टेक्निकल प्रोग्रामिंग के थोड़े बेसिक्स आपको आने चाहिए अगर आप SEO में इंटरेस्टेड हो। अगर आपने नहीं करा है तो आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ लो, HTML CSS वगैरह, ताकि आपको एडिटिंग करना कम से कम आ पाए, बिकॉज आप हर समय टेक्निकल टीम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बैकलिंक डेवलपमेंट मैंने जैसे बोला थोड़ा कम हो गया है, बट अभी भी थोड़ा उसका रेलेवेंस है। बैकलिंक डेवलपमेंट के बिना आजकल SEO को इतना इमेजिन नहीं किया जा सकता, ऑल्दो इसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो रहा है। बट बैकलिंक डेवलपमेंट जो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा हार्डवर्क का काम है, थोड़ा लगे रहने वाली बात होती है उसके अंदर, तो वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। गूगल वेब मास्टर्स आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। आपके लिए एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन से वाले कीवर्ड पे कहाँ रैंक कर रहे हैं और किस में आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, वो उसके लिए गूगल वेब मास्टर्स का टूल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक मैं और सजेस्ट करूंगा, अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं तो कंटेंट राइटिंग में आपका थोड़ा बहुत फ्लेयर है, आप प्लीज इसको एक्सप्लोर करिए। ये SEO ही नहीं, बहुत चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
तो कंटेंट राइटिंग आप थोड़ा सा देखिए। और मैं एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहता हूँ एसईओ केस में, क्योंकि एसईओ ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा काम होता है स्टार्टिंग के अंदर स्पेशली। क्योंकि क्या होता है ना, आप जो भी चीज कर रहे होते हो एसईओ में, उसका इफेक्ट आपको 2-3 महीने बाद दिखता है। तो आपकी मैनेजमेंट और ये लोग इतने ज्यादा पीपल, बिजनेस पीपल आर नॉट दैट, दे वुड नॉट हैव सच पेशेंस। So it's very important for SEO people to have some relationship management skills. Along with that, what happens is SEO में आप थोड़ा बैकलिंक के लिए कभी कभी आप वेंडर्स को एंगेज करते हो, तो वेंडर मैनेजमेंट भी आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो थोड़ा आप अगर एक कमरे में बैठ के अकेले से SEO कर नहीं सकते, आपको कंटेंट के लिए आपको किसी SME जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे आपकी कंपनी के अंदर, आपको उनसे बात करनी होगी। वो आपको पॉइंट्स देंगे कि यार इस टॉपिक पे इसके बारे में आप अच्छा लिख सकते हो, तो ये चीजें आप फॉलो करो। तो ऐसी चीजें एसईओ के अंदर, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ये ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला फैक्टर होना चाहिए। Second, as for me, it's content marketing and strategies, which is a very important role these days. And as I'm saying in SEO also, the quality of content is becoming important. So, content marketer is का role जो है बहुत important हो गया आजकल डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसके अंदर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑब्वियसली लिखना आना चाहिए। आपको सेगमेंटेशन पता होनी चाहिए, बेसिकली मैं कौन सी ऑडियंस के लिए कैसे लिखूं, क्या चीज लिखूं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप हर समय खुद नहीं लिखते हो, तो कंटेंट क्यूरेशन, जिसका मतलब हुआ कि आप दूसरों से लिखवा रहे हो, उसका आपको थोड़ा स्किल होना चाहिए कि उनको कैसे ब्रीफ्स दे सकते हो आप, उनको कैसे डिस्क्राइब करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और उनके काम को फिर रिव्यू करके उसमें चेंजेस करवाना, ये सब चीजें जो होती है कंटेंट मार्केटर का काम होता है। तो वन मोर रोल इज कंटेंट मार्केटर. Third, in a company's email marketer, in large organizations, even email teams have got 4 or 5 people. There's somebody who basically just works on the deliverability part of email, जिसमें क्या होता है कि उसका काम सिर्फ यही होता है कि ईमेल में ये चीजें इंश्योर करे टेक्नोलॉजी में कि वो डिलीवर हो जाए बंदे के पास। तो email marketing is always been a very good form of communication. अभी भी इनफैक्ट मेरी कंपनी में मैंने जब email marketing इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा हुआ था हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको ईमेल्स लिखने आने चाहिए। ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज का भी आइडिया नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए। एक ईमेल टूल्स होते हैं जो हर कंपनी यूज करता है, एक सेंडग्रिड जैसे कि फॉर एग्जांपल है, एक मेल चिम्प करके है, ऐसे टूल्स आप थोड़ा, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप प्लीज इसके बारे में पढ़िए, आप जानिए, आप यूज करिए इन सॉफ्टवेयर को, तभी जाकर आप इंटरव्यू में जाकर थोड़ा सा इसके बारे में कर पाएंगे, इम्पैक्ट बात कर पाएंगे। ईमेल मार्केटिंग में एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे ड्रिप मेल मार्केटिंग कहते हैं, वो मैं थोड़ा बाद में कर सकता हूँ उसको और विस्तार में। बट ड्रिप मेल क्या होता है, एक तरीके से आप अगर एक्सप्लोर करते हो कई सारी कंपनीज में, आप कभी एक जैसे इंश्योरेंस ही लेने जाओ, तो अगर आप उनकी साइट पे जाकर एक फॉर्म भरते हो, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको मेल आते हैं, फिर उसके बाद में एक हफ्ते बाद एक और मेल आता है, फिर हफ्ते बाद एक और मेल आता है सेम कंपनी से। तो इसका कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होता है, ये ड्रिप मेल चल रहा होता है, जिससे वो जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं वो डाल रहे होते हैं। तो ड्रिप मेल्स बनाना आपको जरूर आना चाहिए अगर आप ईमेल मार्केटर हो। क्या क्या सब्जेक्ट लाइंस पे आप ड्रिप मेल्स बना सकते हो, क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, कितना उसमें इमेजरी होना चाहिए, कितना टेक्स्ट होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए अगर आप ईमेल मार्केटिंग एक्सप्लोर करना चाहते हो। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका तो आई थिंक सबके दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो बहुत है इम्पोर्टेंट इनफैक्ट। Social media marketing is basically, as you know, on the popular platforms you already know, Instagram and Facebook and this LinkedIn and Twitter. इसमें Facebook is the most important obviously when it comes to especially B2C, क्योंकि Facebook खुद तो इतना आजकल इम्पैक्टफुल नहीं है, बट उसके हाथ में Instagram भी है, और Instagram एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है मार्केट करने के लिए। तो आपको फेसबुक का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, कैसे इसका होता है। उसमें आपको business.facebook पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फेसबुक का एड्स मैनेजर पता है तो वो प्रॉब्लम, आपको business.facebook का पूरा प्रॉपर एड्स मैनेजर का आपको आइडिया होना चाहिए। अभी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है फेसबुक में, क्योंकि उन्होंने टारगेटिंग थोड़ा बंद कर दिया है, लेकिन दिस स्टिल रिमेन्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म। LinkedIn is one platform which you might ignore in the beginning, but when it comes to B2B business, especially जहाँ मैं काम करता हूँ, LinkedIn is the most important platform for us.
लिंक्डइन की सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके की टारगेटिंग लिंक्डइन देता है वो फेसबुक पे नहीं देता है। तो आप लिटरली कंपनी के लोगों को ही टारगेट, जैसे मैं 10 कंपनियों में ही इंटरेस्टेड हूँ, अगर मेरा कुछ ऐसा बिजनेस है, लेट्स से मैं अगर मोटर ऑटो कंपनीज की ट्रेनिंग का काम अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ गाड़ियों की कंपनी के ही लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो उस लेवल का टारगेटिंग मेरे को लिंक्डइन अलाउ करता है। एक दो और हैं प्लेटफॉर्म्स, एक ट्विटर है, ट्विटर भी अच्छा है। ट्विटर के अंदर उसको थोड़ा सीखने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ट्विटर, और लिंक्डइन भी एक्सपेंसिव पड़ता है, ट्विटर भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे हमारे को आई थिंक $1.25 के आसपास एक फॉलोअर का पड़ता है ट्विटर में, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। सो ट्विटर इज समथिंग विच यू शुड लर्न, एंड मतलब काफी लोगों के लिए दे स्पेंड मच मोर टाइम ऑन ट्विटर रादर देन इंस्टाग्राम, स्पेशली जो थोड़े अगर हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टाइप, अगर आपका कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो ट्विटर पे आप जरूर एक्सप्लोर करिए। उसके अंदर बुक्स को प्रमोट करना, ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए ट्विटर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया में और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप कर रहे हैं तो फ्री में भी आप बहुत तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। रेडिट है, रेडिट को आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए। एक कोरा एड्स होता है, कोरा एड्स को आप जरूर देखिए अगर आप सोशल मीडिया में कुछ काम करना चाह रहे हैं। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडिट और कोरा, और इनफैक्ट रेडिट और कोरा आपके एसईओ में भी बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज आपका कीवर्ड रिसर्च और आपके कंटेंट रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोरा और रेडिट को आप इग्नोर मत करिए। नेक्स्ट I'll come is सर्च इंजन मार्केटिंग और पेड मीडिया स्पेशलिस्ट। सर्च इंजन मार्केटिंग एक्चुअली थोड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर एसईओ भी आता है, बट what I mean by this is basically PPC campaigns, where what basically mostly the important thing is in Google Ads. So Google Ads is one of the best ways to advertise a product. And if anybody wants to be serious in digital marketing, I would say you must learn Google Ads. गूगल एड्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जैसा आप जानते हैं, गूगल एड्स का पर्पस ही होता है कि जो बंदा एक्चुअली में उस प्रोडक्ट के बारे में या उस चीज के बारे में सर्च कर रहा है उसको एड डिस्प्ले होता है। तो उससे बढ़िया ऑडियंस आपके लिए कोई हो नहीं सकती। ट्रैफिक लाने के लिए, टारगेटेड ट्रैफिक लाने के लिए अगर आपका गूगल एड्स का कैंपेन अच्छा चल रहा है, वही बहुत है। इनफैक्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम करता हूँ, हमने काफी अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का इम्प्रूवमेंट किया है वो मेनली थ्रू गूगल एड्स ही किया। और भी चीजें नहीं है, पर गूगल एड्स का आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूशन था उसका। गूगल एड्स के लिए आई वुड सजेस्ट आप कॉपी राइटिंग, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट राइटिंग, आपको एनालिटिक्स और एक्सेल में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप डेटा से कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं गूगल एड्स में तो आप अच्छा नहीं कर सकते इसके अंदर। आप सिर्फ अगर कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो शायद ठीक है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको थोड़ा एनालिटिक्स आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आइडिया क्या होता है, आपको अपना जिस तरीके से आपको कॉपी राइटिंग भी करनी है वो आप अपने डेटा के बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो गूगल एड्स देखने के लिए आप एक्सेल प्लीज अच्छे तरीके से जान लीजिए, आप थोड़ा एनालिटिक्स भी जान लीजिए। गूगल एड्स का अपना एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। गूगल एड्स में बहुत सारे टारगेटिंग ऑप्शंस अब आ गए हैं, उसमें से ऑटोमेटेड भी बहुत सारे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा आप एड्स बहुत अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। आप यूट्यूब एड्स भी गूगल एड्स से ही चलाते हैं, तो आपको वो वाला पूरा एस्पेक्ट आना चाहिए। इनका एक सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं गूगल एड्स के अलग अलग। अगर आप इसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं और आपके पास ये वाले सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप ऑलरेडी बहुत मतलब इंटरव्यू में 15-20 लोग होंगे, तो उसमें से 10-11 के पास तो ये सर्टिफिकेशन होंगे, तो आपके पास ये जरूर होनी चाहिए। आई थिंक somebody is trying to speak something. Okay. Again, Google Ads के बाद there is obviously Bing Ads. Bing Ads is the same thing. In fact, Bing Ads ने तो अपने लिए ऐसा कर रखे हैं कि आप एक क्लिक से सारा अपना Google Ads के थ्रू ही Bing Ads को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका एक कनेक्टर होता है, वो ले सकते हो। बट Bing भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत नोटिस किया, Bing में ट्रैफिक ऑब्वियसली बहुत कम आता है। मतलब 80-20 या मेरे ख्याल से, हाँ 80-20 का स्प्लिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीड्स हमारी आती हैं। बट बिंग से टारगेटेड लीड्स, मतलब लीड्स की क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, बिकॉज कोई बंदा बिंग यूज करके आ रहा है तो वो मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोडक्ट के अंदर, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि गूगल पे तो फिर भी लोग बहुत सर्च करते हैं, बट बिंग के थ्रू कोई आ रहा है, मैंने देखा उसकी ऑडियंस थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो आप बिंग एड्स को इग्नोर मत करिए। इनफैक्ट आपको पैसा कम खर्च होता है बिंग एड्स में, और रिटर्न ज्यादा आता है हमेशा।
बट प्रॉब्लम है इसके बिंग एड्स इतना लोग बिंग यूज करते नहीं है इतने ज्यादा लोग, बट बिंग को भी आप एक्सप्लोर करिए अगर आप ये पीपीसी के स्पेशलिस्ट हैं। अगेन फेसबुक बिजनेस, कोरा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सोशल मीडिया का भी पार्ट कह सकते हो, इसको पीपीसी का भी पार्ट कर सकते हो, बिकॉज लिंक्डइन और इन सब प्लेटफॉर्म्स में पीपीसी कैंपेन्स भी आप रन कर सकते हो, यानी कि पेपर क्लिक कैंपेन। तो अगर आप एक पेड मीडिया स्पेशलिस्ट हैं, आप पीपीसी के कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टाइजमेंट्स के प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपका मार्केटिंग स्किल भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किसको कैसे क्या दिखाना। एक मेरा रिकमेंडेशन ये भी है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही सारी चीजें जो होती है ना, बहुत 2-3 लोग ही कर रहे होते हैं। तो अगर आप पेड मीडिया स्पेशलिस्ट हैं तो थोड़ा बहुत आपको लैंडिंग पेज बनाना वगैरह ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए। आजकल जो है आपको कोडिंग जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कोई पेज बनाने की। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अगर इफ इट्स बीन पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, बट दीज डेज व्हाट्स देयर इज दैट इतने सारे टूल्स होते हैं कि आप लिटरली फोटोशॉप के पेज की तरह एक पेज को बना सकते हो। हमने विक्स वगैरह तो यूज कर ही रखा होगा सबने। तो और वर्डप्रेस करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर आप बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पेजेस बना सकते हो, और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फिर कैंपेन्स रन करना। ऑल्दो ये सारे पेजेस आजकल तो इनके अपने एक बड़ी एक्साइटिंग चीज आई है जिसके अंदर ये प्री फिल्ड फॉर्म्स होते हैं, तो लैंडिंग पेज पे जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है, आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डली होती है लिंक्डइन और फेसबुक पे, और आप उससे जो है लीड सबमिट कर सकते हो। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है पेड मीडिया, मुझे बहुत मजा आता है चलाने में इसके कैंपेन्स। और आई वुड सजेस्ट इफ यू आर सीरियस डिजिटल मार्केटर, get some idea about paid digital marketing, although you might not be that interested in this aspect. One more, I'm not sure if this is being part of training, is marketing automation is becoming very important aspect. This is the second, this is the another role which I'm talking about. मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या होता है ना कि आजकल स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती है, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, उनका ऑब्वियसली सबको आप अप्रोच अपने आप मैनुअली तो मार्केटिंग का आप सब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें क्या होता है कि आप एक तरीके से काफी पार्ट अपना कैंपेन का जो होता है ना, आपका एक प्लेटफॉर्म चलाता है। आप उसको बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, और बाकी चीजें वो फिर खुद देखता है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन एक तरीके से आपका ऑटोमेटिक ईमेलिंग, ऑटोमेटिक एसएमएसेस। आप अगर कभी आपने एक्सप्लोर करा होगा कि आप कहीं पे कुछ अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसका मेल आते हैं, उसके एसएमएस आते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखने चालू हो जाएंगे अपने फोन में उसकी कंपनी से रिलेटेड। तो ये सब चीजें प्लेटफॉर्म संभालता है हर कंपनी के अंदर। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, उनके अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, और ये बहुत एक्साइटिंग है ये वाला करियर चॉइस, मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट। दो इसके लिए स्पेसिफिकली रोल्स इतने ज्यादा होंगे नहीं, सिर्फ बड़ी कंपनीज में होता है जिसके अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन एक डिफरेंट बंदा होगा प्रॉब्ली। कंपनीज जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बजट्स आई डोंट नो 10 करोड़ 50 करोड़ के ऊपर के डिजिटल मार्केटिंग बजट्स होते हैं, उसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन के डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट टीम होंगे। बट कई कंपनीज में क्या होता है, वो जनरली जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है, जो हेड होता है, वही ये चीज संभालता है। HubSpot एक है इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, उसका काफी पॉपुलर है। उसके अपने अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके अपने कुछ कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप मार्केटिंग ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको HubSpot बहुत जरूरी आना चाहिए। एक सेल्स फोर्स करके है, सेल्स फोर्स तो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत कुछ होता है। उसका एक पार्डॉट करके मेरे ख्याल से उसका एक होता है जो उसका मार्केटिंग ऑटोमेशन वाला पार्ट है, तो उसके कुछ बेसिक कोर्सेज हैं, वो आप कोशिश करिए कि आप उसके बारे में पढ़ें, आप उनका सर्टिफिकेशन के टेस्ट वगैरह दीजिए। बट मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत एक्साइटिंग होता है। इसमें आपको बहुत ही अर्लियर लेवल पर आपको ऑडियंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बेसिस पे आप एक ऑटोमेशन बनाते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे कि इस बंदे ने अगर मेरा एड देखा और उसने मेरे फॉर्म पे भरा तो उसको एक मेल जाना चाहिए, मेल गया तो उसने उसके बारे में अगर रिप्लाई करा उस मेल से तो उसको एक दूसरा मेल जाना चाहिए, अगर नहीं रिप्लाई करा तो एक हफ्ते बाद उसको दूसरा मेल भेजो। ऐसा एक ट्री टाइप उसमें सिस्टम होता है। अगर आप अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट आप कभी इसके बारे में पढ़े तो आप एक्सप्लोर करेंगे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर कैसे वो ट्री होता है, आप उसको डिजाइन करते हैं और आप उसको सेट करते हैं, आप उसको रन करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी लीड्स आती हैं वो उसके थ्रू रन करती हैं। और आजकल ऑब्वियसली कोई भी पहली बारी में कोई कुछ खरीदता नहीं है, आपको उसको 10 बारी
उसको पुश करना होता है, याद दिलाना होता है कि हम भी हैं। आप उसमें उसको अपने डिस्प्ले एड्स बार बार दिखाएंगे। उसमें एक और चीज होती है आजकल, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हर आदमी जो आ रहा है हमारी वेबसाइट में, हम उसके अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर हम चाहते हैं, तो वो हमने कुछ इसमें अपने ऑटोमेशन में ऐसा सेट कर रखा है जिसके बेसिस पे हर आदमी को एक स्कोर दिया जाता है, जिसको पता नहीं है जिसने लीड भरी है, बट हमने उसको एक स्कोर दिया है बेसिस जो फॉर्म वो भरता है, उसके बाद में कितना वो इंटरेक्ट करता है हमारे पेजेस से, उसके बाद में हमारे ईमेल्स कितने पढ़ता है, उसके बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास लोग कम होते हैं कॉल करने के लिए और लीड्स ज्यादा होती हैं, तो हम कुछ ही लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑटोमेशन के टूल्स वगैरह बड़े काम आते हैं। आप अगर जनरल डिजिटल मार्केटर मैनेजर या हेड बनना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग ऑटोमेशन इज अ मस्ट हैव स्किल, यू मस्ट लर्न दिस। वेब पेज डेवलपमेंट अगेन इज वन मोर थिंग व्हिच इज देयर। You know what web page development is. I'll not take it too much into detail, but web page development, if you know, it's good. If you don't know, it's also okay. But at least be comfortable with the code. मतलब थोड़ा बहुत आपको HTML CSS का थोड़ा comfortable होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये क्या दिखा रहे हो मेरे को। आपको थोड़ा पढ़ना आना चाहिए, बिकॉज कभी कभी चेंजेस खुद करने पड़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। Data analysis is another very important towering this thing which is required. Any digital marketer must be comfortable. Most digital marketers must be comfortable with numbers. तो एक्सेल वगैरह और ये सब जो आजकल नए नए टूल्स आ गए हैं उसका आप थोड़ा आइडिया ले लो। वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे ऐसे जो आपके ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल के, उसका थोड़ा आइडिया रखो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ऑल, ये इसके सारे टूल्स तो आपको पहले ही से ही आते हैं। गूगल एड्स, गूगल वेब मास्टर्स और जो बाकी प्लेटफॉर्म हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए, आपको ये बेसिकली टाइप का जैसे हम कभी कभी अगर एसईओ के लेवल पे भी मैं अगर एनालिसिस करता हूँ, तो मैं जो हूँ अपने आप को बहुत डेटा का, मैं थोड़ा वो मानता हूँ कि मेरे को डेटा का थोड़ा अच्छा आइडिया रहता है। तो मेरे एसईओ स्ट्रैटेजी सारी मेरी वेब मास्टर्स के डेटा पे चलती है जब भी मैं चलाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरा आइडिया ये रहता है कि कुछ पेजेस हमारे लेट से कुछ पेजेस हमारे ऑलरेडी रैंक कर चुके होते हैं अच्छे वाले, कुछ पेजेस होते हैं वो नहीं करते हैं, तो उनमें भी मैं फिर घुस के देखता हूँ कि कौन से वाले कीवर्ड्स हैं जिसमें हमारा काम बढ़िया नहीं चल रहा है। तो उसमें भी फिर हम ये देखते हैं कि हमारी उसमें पोजीशन का क्या है, उसमें सीटीआर क्या है, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं इस कंटेंट को हमें क्या चेंजेस करना चाहिए। तो इवन एसईओ जैसे कंटेंट वाले रोल के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा एनालिसिस कंफर्ट थोड़ा एटलीस्ट बेसिक लेवल का आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, आपको एक्सेल पढ़ना आना चाहिए, आपको क्लिक्स क्या होता है, यूजर्स क्या होता है, सेशंस क्या होता है, ऐसे टर्म्स वगैरह इस सब चीज़ों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। आप अगर अपने इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। Next point is again is video production. Video production is again like web page development is not exactly everybody needs to do this, but this is a good option. मतलब my point is कि अगर कोई वीडियो में भी है तो आजकल फ्यूचर ऑफ कहते हैं, फ्यूचर तो अब तो प्रेजेंट ही हो गया एक तरीके से। वीडियो इज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हर कंपनी में अब रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मेरे प्रीवियस जॉब के अंदर हमें बहुत कमी दिखती थी इसकी इन टर्म्स ऑफ वीडियो प्रोडक्शन। हमारे पास वीडियो वाला कोई बंदा नहीं था। तो अगर आपके पास वीडियो की स्किल्स हैं तो इसके बेसिस पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग टीम्स ज्वाइन कर सकते हो, और आपके लिए वही काफ़ी है। मतलब वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, उसके क्या कहते हैं मतलब अलग अलग तरीके से उसके वो ग्राफिक्स वगैरह डालना, वो सब चीज़ें जो है, अगर वो ही आपके लिए एक स्किल है तो आपके लिए बहुत डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग में। उसके ऊपर अगर आप और कुछ, मतलब मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग आता बहुत कुछ है बट अपने पुराने शौक की वजह से उनको वीडियोस अच्छे शूट करने आते हैं, तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर या उसका कोई इंटरव्यू देता हूँ कहीं पे, और मेरे ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत बेसिक आती है, बट मेरे को वीडियो भी बड़ी अच्छी शूट करनी आती है, तो हर कंपनी मेरे में इंटरेस्टेड होगी। इनफैक्ट मेरी प्रीवियस जॉब रोल के अंदर क्या हुआ था, आई रिमेम्बर कि मेरे को इंटरव्यू में आई थिंक एक चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगी थी कि मैंने ये टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे शूट कर रखे थे। तो उस बेसिस पे आई थिंक मैंने वो क्रैक, मतलब और भी रीजन होंगे बट ये एक अच्छा वो था, गुड टू हैव स्किल। ऑल्दो अगर नहीं आता है, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो इट्स ओके। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा भी नहीं है कि इसको बहुत जरूरी है। ग्राफिक यूएक्स डिजाइनिंग इज वन मोर थिंग, एज यू नो ग्राफिक्स का फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल दोस थिंग्स बहुत डिमांड है। विजुअल हो गया सब कुछ। अगर आप
अपनी ऑडियंस के हिसाब से ग्राफिक्स बना सकते हो जैसा वो चाहते हो और टाइम पे डिलीवर कर सकते हो। तो हर डिजिटल मार्केटिंग टीम को एक ग्राफिक्स वाला गोल्डन होता है। इनफैक्ट अगर मेरे को अगर कभी भी ऑप्शन दिया जाए तो मुझे कुछ मतलब मुझे थोड़े से राइटिंग की स्किल वाला कोई आदमी है, थोड़ा सा एडिटिंग से मैं काफी है, बहुत सारे कैंपेन चला सकता हूँ उसके बाद। तो graphics and UX designing is also one thing. There's a lot of opportunity there. You don't know anything, but you know graphics and UX designing. You can be a very important part of the digital marketing. Okay, next is general digital. Yeah, again, general digital marketing manager. This is my favorite role. And this is what exactly I do. इसमें क्या होता है आपको बेसिकली कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ जनरल लोग होते हैं हर टीम के अंदर। जो जनरल डिजिटल मार्केटिंग वाला होता है उसको बेसिकली बेसिक्स पता होता है बहुत सारी चीजों का और प्रॉब्ली स्पेशलिस्ट होता है एक दो चीजों का। तो और ये एक तरीके से इसका पे भी थोड़ा सा, अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे काम करते हैं तो एक जनरल डिजिटल मार्केट मैनेजर जो होता है उसका हाईएस्ट सैलरी होता है। तो वो बेसिकली उसके ऊपर टारगेट होता है, उसको डिलीवर करना है, वो कैसे भी करे करके वैसे करके इनके काम होते हैं। So general digital marketing manager or executive role is one more thing which everybody should seek to get there. Maybe you can start, आप घुसते हो तो आप ऐसे रोल पे नहीं घुसते हो। अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाओगे तो शायद आपके ऐसे रोल लो, बट बड़ी कंपनी में आपको कभी भी सीधा ये वाला रोल नहीं देंगे। आप स्पेशलिस्ट होगे और फिर उसके बाद में आप प्रमोट होके आप टीम को संभालोगे तो आप ये जनरल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या executive के रोल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अफिलिएट मार्केटिंग आपने पढ़ा तो होगा। आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप बिकॉज इसमें स्पेशली ई कॉमर्स जैसे सेटअप के अंदर जहाँ पर आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए होता है अपना कन्वर्जन करने के लिए, आप हर चीज आपकी मार्केटिंग टीम नहीं देख सकती, तो आप बाहर से कुछ लोगों को आप बेसिकली अलॉट कर सकते हो कैंपेन, और वो आपके लिए कैंपेन्स चलाकर फिर आपको ट्रैफिक लेकर आते हैं और आपके लिए फिर वहां से कन्वर्जन्स लेकर आते हैं। इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह बहुत होती है। मैंने देखा है जो लोग थोड़े से बातचीत करने में जान पहचान वाले होते हैं वो थोड़े अफिलिएट मार्केटिंग के लिए सही रहते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको चैलेंजेस में ये वाली बात और डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें फ्रॉड बहुत होता है। मतलब बहुत लोग आपको बोलते हैं कि हम ट्रैफिक लेकर आएंगे, बट ट्रैफिक दिखाने के भी बहुत तरीके होते हैं। तो आपको वो फ्रॉड के लिए क्या नहीं, मतलब आपको क्या चीजें देखनी चाहिए वो उसका आइडिया होना चाहिए अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कई लोग आपको लीड्स भी लाके देंगे, आप फोन करेंगे तो वो इंटरेस्टेड भी होंगे, मतलब इतने लेवल के स्कैम होते हैं इसमें। तो अफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा रहता है अगर अच्छा कोई वेंडर मिल जाए तो आप उसके साथ थोड़ा रहो जो थोड़ा जेन्युइन हो। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ गुड स्किल टू हैव व्हेन यू टॉक अबाउट अफिलिएट। नेक्स्ट इज इफ यू वर्किंग इन एजेंसी, ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स के बंदे की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। this person is very important for any digital marketing agency if you're working in the agency part. So if you know very basic of everything and you're good at sales, so then this is a good option for you. अगर आप बातचीत करने में, रिलेशनशिप बनाने में, और ये ऑनेस्टली ये कॉर्पोरेट साइड के जनरल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से भी यूजुअली डिजिटल डेवलपमेंट, ये जो बिजनेस डेवलपमेंट वाले होते हैं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इनका इंसेंटिव वगैरह का भी होता है। तो अगर आपको बेसिक्स ही पता है डिजिटल मार्केटिंग के बट आप सेल्स में बहुत अच्छे हो तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज बहुत एजेंसीज आ रही हैं आजकल और सबको जो है ऐसे चाहिए, और कैंपेन्स की कोई कमी नहीं है आजकल। सारी कंपनी सबको डिजिटल जाना है तो फिर सब चाह रहे हैं कोई ना कोई एजेंसी से एनरोल करना, तो सेल होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन एन एजेंसी इज नॉट अ बैड चॉइस। रिलेशनशिप मैनेजर इन एजेंसी क्या होता है, उसका काम होता है बेसिकली जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेकर आया उसको फिर ग्रो करने का, उसके लिए डिलीवर करने का ऑपरेशंस को वो रिलेशनशिप मैनेजर करता है। इसमें आपको थोड़ा सा बेटर स्किल्स आना चाहिए देन अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बट यू शुड नो पीपल वेल, यू शुड बी एबल टू हैंडल पीपल वेल। बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलता है इसके अंदर, वो आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए इसके अंदर। रिलेशनशिप मैनेजर थोड़ा होता है डिफिकल्ट अगर आपको प्रॉब्लम है लोगों को फेस करने में, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स इट्स अ वेरी गुड रोल। एंड इफ समबडी हु इज वांट टू हेल्प, जैसे मेरे केस में क्या है, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मेरे केस में थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि मैं कभी कभी एक ही जैसे कैंपेन्स रन कर करके बोर हो सकता हूँ। अगर आपके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एजेंसी के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर का रोल कर सकते हैं। आप सेम काम करेंगे जो एक
ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर करेगा, बट आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए करेंगे और आप नए नए कैंपेन्स रन करेंगे हर तरीके के। तो इससे बढ़िया सीखने का रोल कोई हो नहीं सकता। बहुत लोग रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं कंपनी में, बाद में जाकर किसी कॉर्पोरेट में हेड बन जाते हैं और बहुत उनकी सैलरी ग्रो कर जाती है। तो ये अच्छा रोल है रिलेशनशिप मैनेजर का, आप देख सकते हैं। These are some of the career options in digital marketing. I have some more roles which to shall discuss. Yeah, yeah. Some other roles in digital marketing. ये थोड़े बहुत कुछ इसमें दो तीन फ्यूचरिस्टिक वाले हैं। एक होता है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। ये भी आजकल एक नए रोल्स आ गए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप ई कॉमर्स साइट होते हैं, तो उसके अंदर अच्छा, ये वाले रोल्स ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया सारे कंबाइन करके एक दो बंदे भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि इसके लिए हर समय डिफरेंट आदमी होता है, बट इसकी आइडिया आपको होना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में घुस रहे हैं, स्पेशली कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब बेसिकली आपकी वेबसाइट पे पेजेस पे ट्रैफिक आता है, उसको कन्वर्ट करते हो आप, या तो सेल करते हो या फॉर्म भरते हैं कुछ, तो उसका एक कन्वर्जन रेशो होता है। माने कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 5 लोग ही फॉर्म भरेंगे, 6 लोग फॉर्म भरेंगे। एक ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट जो पहला रोल है, उसका काम क्या होता है, वो 5 को वो 15-20 करके लेकर जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो कैसे करते हैं, गुड क्वेश्चन। वन इज ऑब्वियसली आप डिजाइन पे थोड़े चेंजेस करेंगे, आप कंटेंट पे थोड़े चेंजेस करेंगे, आपका फोकस इन सब चीजों पे रहता है। और होता है, बाकी होता है उसमें टूल्स बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको टूल्स बहुत अच्छे आने चाहिए। मैं आपको एक टूल बताता हूँ, ऑप्टिन मॉन्स्टर करके है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसके ऑल दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं ऑप्टिन मॉन्स्टर पे काम करता हूँ स्टार्टिंग से। तो उसका काम बेसिकली ये होता है कि आप अगर पेज पे आए हो, आपने कभी कभी नोटिस करा है कि आपका माउस अगर आप ऊपर लेकर जा रहे हो या पेज से चेंज करने जा रहे हो, एक पॉपअप आ जाता है उस पेज पे। तो वो आपको रोकता है, आपको कुछ मे बी कुछ और ऑफर करता है, कुछ और डाउनलोड की चीज देता है जो थोड़ा आपके, ताकि आपकी डिटेल्स उसको मिल जाए, या ताकि आपके साथ कुछ कनेक्ट बना रहे और आप फ्यूचर में शायद उसको बंदे को सेल कर पाए। तो ये काम जो होते हैं ना, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पे कहते हैं। ऊपर से आजकल चैट बॉट्स और ये चैट्स का बड़ा बहुत टाइम से चल रहा है, तो ये भी यूजुअली कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होता है, जहाँ पर आप फॉर्म ना भरो बट आप और किसी तरीके से करो। इनफैक्ट मेरी पिछले से पिछली कंपनी में आई थिंक 10% का हमने इम्प्रूवमेंट किया था करीब करीब, अपने जो कन्वर्जन होते थे पेजेस से बेस्ड ऑन चैट बॉट। तो कई बारी फॉर्म नहीं भरते थे लोग, बट ये बॉट से इंटरेक्ट करते थे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर्म किस तरीके से आपने बनाया हुआ है, फॉर्म के क्या क्या, अभी कभी कभी होता है कि आपको फॉर्म पूरा का पूरा हमेशा नहीं दिखता। वो आपसे पहले सवाल पूछता है, उसके बाद में आपसे एक और सवाल पूछता है, तीसरा सवाल पूछता है, उसके बेसिस पे आपको एक फॉर्म दिखता है। तो ये सब चीजें कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट होता है। अगर आप जनरल डिजिटल मार्केटिंग में हैं या फिर आप वेब डेवलपमेंट में हैं, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आप हम अपनी कंपनीज को रेकमेंड कर सकते हैं और आपको ये चलाना आना चाहिए। तो इसमें एक टूल है ऑप्टिन मॉन्स्टर, इसको देखिए। बाकी इसमें फ्री ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। चैट के लिए मेरे ख्याल से ज़ेनडेस्क या एक दो और हैं ऐसे चैटबॉट्स, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नाम मिल जाएंगे। तो इन टूल्स को कैसे चलाते हैं आपको आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में ये टूल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में देख रहे होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसके इन सब टूल्स को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंचार्ज। आजकल ये बहुत अच्छा रोल हो गया, इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इन फॉर एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंचार्ज, व्हाट दिस पर्सन डज इज कि for a lot of organizations, their promotional activities, in fact a very good promotional activity is going through an influencer। क्योंकि क्या होता है, स्पेशली अगर आप नए हैं तो आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई उस चीज का एक्सपर्ट मानता नहीं है, तो आप किसी और एक्सपर्ट का पार्ट लेते हैं और उसके कॉन्वर्जेशंस में आप अपना नाम डालने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उसको बोलते हैं कि वो अपने पेज पर, अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप थोड़े थोड़े दिनों बाद वो 5 पोस्ट करते हैं, छठा पोस्ट उनका किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में होता है। तो उनको क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं पैसे देती हैं कि आप हमारे बारे में बोलिए। अगर आप आजकल एक कंपनी जानते हैं बहुत फेमस है, वो शार्क टैंक पे मामा अर्थ करके एक कंपनी है। तो व्हाट हैपेंस इज, मामा अर्थ का आई रिमेम्बर जब ये स्टार्ट आउट हो रही थी, तो एक वो फिट ट्यूबर करके कोई यूट्यूब का आदमी है, उसका बहुत फेमस चैनल है। तो उसने काफी उसका प्रमोशन किया था, विच रियली हेल्प मामा अर्थ ग्रो, और वो उसका काफी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटर बन गया। तो वही चीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जानने के लिए अगेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपको
सेगमेंटेशन का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस को कैसा वाला इन्फ्लुएंसर अच्छा रहेगा। अब आप अपने प्रोडक्ट के लिए हर इन्फ्लुएंसर को तो नहीं एंगेज करेंगे। आपको जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर आप फिटनेस के हैं तो आप ये फिटनेस के ये फिट ट्यूबर है, प्लस ये गौरव तनेजा करके आई थिंक इनका नाम है, वो बहुत फेमस है फिटनेस के ऊपर। तो आप उन ऐसे लोगों को एंगेज करेंगे। आप ट्रैवल के हैं तो आप ट्रैवल वाले को ढूंढेंगे। आजकल बहुत कह रहे हैं कि मतलब स्पेशली यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम पेपर पीपीसी कैंपेन, बिकॉज पीपीसी कैंपेन्स हर कंपनी के लिए इफेक्टिव नहीं होते, तो दे आर लुकिंग इनटू इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स। और इतने कम प्राइस में, लेट्स से जैसे आई रिमेंबर मैंने एक ट्रैवल की एक गर्ल को एंगेज किया था, तो शी वाज आस्किंग फॉर समवेयर अराउंड 10 to 15,000 रुपीज फॉर अ पोस्ट और समथिंग। तो और उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो उस उतनी ऑडियंस को इस प्राइस में जाने के लिए मतलब पीपीसी के थ्रू थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और वो भी टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि जो टाइप की ऑडियंस आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। तो इन्फ्लुएंसर इज अ गुड आइडिया। अनदर ऑप्शन इज another thing which I want you to talk about is AI, ML, and data expert. This is also becoming this will become a very good big thing, where what the thing would be ki, basically you might not be analyzing everything about your data. Lot of things might be happening through artificial intelligence and machine learning. इसका honestly मेरे को भी बहुत idea नहीं है, बहुत नया है, but अगर आप ये डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आप उसके थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग टीम्स के पार्ट हो सकते हैं। आपको डेटा का सिस्टम चलाना अगर आपको आता है ना, थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, दिस विल बी एन ऑप्शन इन द फ्यूचर. Next is virtual reality expert. Now, all of you must have heard of this thing which has come up. It's called metaverse. So metaverse is बेसिकली आपने अगर उसके बारे में कुछ देखा होगा तो फेसबुक ने बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी का एक वर्ल्ड बनाया है, जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑल्टरनेटिव रियलिटी। आप यहाँ पर बैठकर आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप एक नकली दुनिया में हो, उसमें आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब चीजें। तो आप सोचिए अगर सब लोग ये चीज करने लगे और फेसबुक से चले जाए तो फेसबुक के एड्स का इफेक्टिवनेस तो कम हो जाएगा। तो आप मे बी वर्चुअल रियलिटी के अंदर फिर अपने एड्स दिखाना चालू करोगे। तो फ्यूचर में ये भी एक है इसके अंदर। तो अगर कोई मतलब अगर कोई जनरल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या उस लेवल के लोग हैं या सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनको आजकल ये सब चीजों को इनको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, वीआर एक्सपर्ट बने। अभी तो नहीं है, आई डोंट थिंक 10 ईयर्स के अंदर कुछ, 5 to 6 ईयर्स में तो कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर, बट फ्यूचर में मे बी ये वीआर वर्चुअल रियलिटी की भी कोई होगी, इसकी भी कोई होगी। या so these are the kind of roles which are there. I'm sure there must be something I might have missed. Hopefully I'll be able to communicate the other one, but these are the general which I've seen, the kind of roles which are there in digital marketing. The next is, I hope there are no questions now. So if there's any, so please interrupt me. Chat mein bhi dal sakte ho. I can see something in chat. This field is handled every week. How do we get updated and stay in the field? So Chitra, the field is highly dynamic. Every week Google changes. How do we get updated ourselves and stay in the field? इसमें Google का तो एल्गोरिथम का तो Google का अपना ब्लॉग है, आप उसको फॉलो करिए, आप उसमें आइडिया पता लगता रहेगा। और हर डिजिटल मार्केटर अगर वो अपना हफ्ते का 3-4 घंटे नई नई अपडेट्स पढ़ने के लिए नहीं बिता रहा है तो वो पीछे जा रहा है अपने काम से। तो constant research, in fact इसीलिए courses are very important in digital marketing. They provide a structure, but your own practical knowledge and practical skills. Honestly मैंने जब अपना कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग का, वो मुझे याद है मैंने अपना जॉब छोड़ के गया था उस टाइम, और मैं मतलब आई डोंट एनकरेज एवरीबडी टू डू सच, बट मैं कोर्स में जो पढ़ता था वो जो पढ़ता था 1-2 घंटा, बट फिर 3-4 घंटे में घर पे जाकर उसको प्रैक्टिस करता था, चीजें करता था। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग। और यूर राइट कि डायनेमिक है, बट ऐसे तो नहीं है कि एवरी वीक तो गूगल अपने एल्गोरिथम चेंज नहीं करता है। इनफैक्ट आप देखो तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मेरे कैंपेन्स को लेकर, तो वो जब भी कोई अपडेट होता है तो कभी कभी वो गिर जाता है, बट वो 3-4 दिन बाद फिर से ऊपर आ जाता है। ऐसा है नहीं, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड। एंड गूगल के केस में उनका अपना एक ब्लॉग है, आप उसको फॉलो करिए। और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके मोज करके एक कंपनी है, MOZ, उनके ब्लॉग्स आप उनको पढ़ते रहिए, आपको आइडिया पता लगता रहेगा अपडेटेड। This is pointing to jack of all and master of none, but
That's there. I mean, depends on if you're looking for a specialization, it's good to become a master. But when you're in a general role, it's good to have basic knowledge of it. DM strategy is very important other than tech skills. ये type वाला. Yes, that's there, and I feel कि ये हो रहा है थोड़ा सा कि अब कंटेंट और एमके टाइप वाला माइंड इम्पोर्टेंट हो रहा है ज़्यादा. बट टेक की भी अपनी इम्पोर्टेंस है. मतलब अगर आपको टेक बिल्कुल भी नहीं आता है और आप सिर्फ वही करके आप डिजिटल मार्केटिंग, मैं तो एटलीस्ट नहीं रिकमेंड करूँगा. चित्रा ने आई होप दैट. Hello. Yes. Who's that Karan? Do you have any questions? You guys can also write in chat if there's something you want to ask, then I'll answer. Meanwhile, I'll move ahead with my presentation. Again, obviously मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है. I will not go through this slide very much. इंटरनेट इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है. अभी 62 करोड़ 2020 में नंबर ऑफ यूजर्स थे, 90 करोड़ 2025 में होने वाले हैं, कह रहे हैं सर. और ये ग्रो ही करेगा इंडिया के अंदर. तो डिजिटल मार्केटिंग का अगली प्रॉब्लम इस डिजिटल मार्केटिंग में लोग थोड़े से ज्यादा घुस गए होंगे, कभी ऐसा थोड़ा लग सकता है. बट मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग वाले कुछ ना कुछ करके अपना काम बना ही रहे हैं सारे के सारे. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years आई वुड से बहुत कोई भी नया घुस रहा है इसके अंदर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी. तो ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्पेशली इंडिया के अंदर. तो good to have this choice of digital. Again, why a career in digital marketing? First point is growing demand for digital marketing professionals in India, as I had stated. एक और चीज होती है इसमें कि फ्रीडम ऑफ लोकेशन आपको हो सकती है. काफी सारे रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आजकल, स्पेशली पैंडेमिक के बाद. आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं. मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो गोवा जैसी जगह पे जाकर 1-2 महीने अपना वो कोई जगह वगैरह कमरा लेकर वहां से सारा का सारा अपना करें. बट दैट्स नॉट द केस विद एवरीबडी एंड दैट्स नॉट द केस विद मी ऑल्सो. बट अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो रिमोट का ऑप्शन हो जिसमें, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन रोल विच यू कैन डू. फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है इसके अंदर. आप एक चीज आपको नहीं मजा आया तो जैसे मेरे केस में था कि मेरे को सोशल मीडिया स्टार्टिंग में जच नहीं रहा था, तो मैंने किसी और को दे दिया था और मैं ईमेल मार्केटिंग और एसईओ में घुस गया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के. तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पेशली एज मैंने स्टेट किया था, इनका कमेंट था चित्रा जी का कि जैक ऑफ ऑल होने में भी थोड़े से एडवांटेजेस ये वाले होते हैं इसके. नेक्स्ट इज हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं सबको कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इज अ रोल वेयर देयर इज एन एक्साइटमेंट ऑफ अ सेल्स जॉब प्लस कंफर्ट ऑफ एन ऑपरेशंस जॉब. तो आपको एक्साइटमेंट रहती है एक तरीके की हमेशा ना सेल्स की तरह. मतलब वो नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे रोल्स होते हैं. बट सेल्स में जैसे होता है ना कि वो नंबर्स और इस सब चीजों की बातें चलती हैं, आप कस्टमर्स में थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है सेल्स के अंदर. तो डिजिटल मार्केटिंग वो भी करता है, बट आपको फिर बाहर जाकर भी इतना नहीं करना पड़ता. तो अच्छा रहता है. इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. आप मतलब ऑफिस में ही बैठकर, मतलब एटलीस्ट मेरे को तो इट कीप्स मी ऑन माय टोज. सो एनीबडी हु वांट्स लाइक एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू सच रोल्स, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इजी. डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको एक स्किल सेट एक टाइप का होना चाहिए. बट this is a good option. Anybody who wants to not be bored and having a very one place role can choose a digital marketing as a career. Opportunity for all backgrounds at the crux of creativity. This is what I'm saying. आपका बैकग्राउंड जो होता है, हर बैकग्राउंड का आदमी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है. इसमें आपको अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप टेक्निकल हैं और अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है. तो आप या तो तीनों का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और एक का भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो आप फिर आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो. बट क्रिएटिव हो, टेक्निकल हो या कंटेंट हो. एक चीज और है मैं इसमें ऐड करूंगा, मैंने डेटा नहीं ऐड करा है. डेटा, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग का रोल. और अगर आप चारों चीजों का थोड़ा बहुत जैक हो तो फिर आपके लिए जनरल रोल वगैरह काफी सूट करते हैं. तो you can choose this, but you should not be uncomfortable with any of these. वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है. मतलब अगर आप ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं एक के साथ में तो थोड़ा आपको लिमिटेशन हो सकता है अपने करियर के अंदर एक टाइम पे जाकर. अट्रैक्टिव सैलरी इज माय नेक्स्ट पॉइंट. ये अभी थोड़ा कम हो गया बिकॉज लोग थोड़े से कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया.
but still more than any I've seen general operations and finance roles वगैरह के अंदर अगर आप ऑफिस बेस्ड रोल्स होते हैं तो उसमें इसका सैलरी थोड़ा अच्छा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। ये सबके केस में नहीं होता है, स्पेशली जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते बहुत सारी चीजों उनके, बट मतलब जनरली मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ऐसी कंपनीज में जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वहां पर इसका तो अगर कोई कंपनी डिपेंडेंट बहुत है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वहाँ डिजिटल मार्केटिंग टीम का सेटिस्फेक्शन रहता है, बिकॉज उनके साथ एंगेजमेंट यूजुअली चलता रहता है, किसी ना किसी प्रेशर भी होता है उनके केस में, बट मतलब डिजिटल मार्केटिंग हमारे, मैं तो आई रिमेम्बर, मैं तो अपने जब डिजिटल मार्केटिंग जब से करा, मैं तो बहुत मजा आता है ऑफिस में। easy to start your own work. This is also one more thing. जैसा मेरे प्रीवियस बॉस ने बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग वाला कभी भी भूखा तो नहीं रहेगा, बिकॉज अगर आपको मतलब कंपनी का जॉब भी नहीं मिलता है तो फ्रीलांस के ऑप्शंस होते हैं आपके लिए। fiverr.com, freelancer.com, ऐसी ऐसी साइट्स पे आके आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। नहीं भी होता है तो आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब मेरे को याद है, मेरा एक नेबर यहाँ पर आसपास कोई लड़का रहता है, मुझे जितना पता लगा है उसने अफिलिएट मार्केटिंग के बेसिस पे ही बॉट 10 लाख रुपीज कार ऑन हिज ओन। मतलब he's do not every, it's not possible with everybody, but you know, this is a good entrepreneurial opportunity and I would say अगर किसी का इंटरेस्ट है तो कॉलेज के टाइम पे बहुत चीजें एक्सप्लोर करो, बिकॉज आपके ऊपर इतना प्रेशर वगैरह नहीं रहता है, तो आप अपनी चीजें एक्सप्लोर करिए, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप अपना कंटेंट प्रमोट करिए, आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करिए। तो ऐसा आप जब आप रिस्क का आपके पास टाइम अवेलेबल होता है तो आप इस चीज को जरूर एक्सप्लोर करिए। इजी टू शो ROI। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ROI दिखाना ज्यादा इजी होता है, बिकॉज आप ट्रैक करते हो यूजर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको आइडिया नहीं होता है इतना ज्यादा कि बंदा हमारे कैंपेन की तरफ से आया नहीं है, बट डिजिटल मार्केटिंग में ROI दिखाना ज्यादा आसान है। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड करियर टू हैव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर भी, क्योंकि आपको खुद लगता है कि यार मेरी वजह से देखो कंपनी को कितना ज्यादा फायदा हुआ। आप अपनी सैलरी नेगोशिएशंस में भी इसके बारे में बात कर सकते हो। तो इट्स गुड टू एक सेकंड communication skills can. Okay, Chitra ka point. Chitra has a question. I'll answer this a bit later. I hope that's okay. So helps establish authority in the company. Yes, this is also one more thing. आजकल क्या होता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस की वजह से, और ये भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, इसका पॉजिटिव थिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इज कि यू आर प्रॉब्ली फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फ्यू पीपल, आजकल इतना लोग जानते नहीं है इसके बारे में। तो आप कंपनी में जाते हो तो आप एक स्किल लेकर जाते हो जो बहुत लोगों के पास है नहीं, तो एक तरीके से वो थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। आपके ऊपर डिपेंडेंट रहती है कंपनी और आप ही हो जो वो काम कर पाते हो, विच इज आई वुड से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन द कंपनी। सो डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू एस्टैब्लिश अथॉरिटी इन द कंपनी एंड कंसल्टेशन फ्रेंडली होता है। आप अगर आप काम कर रहे हो तो आप कंसल्टेशन भी थोड़े बहुत लोगों को दे सकते हो, आप उनके काम में हेल्प कर सकते हो। इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, एनी बिजनेस विद योर फ्रेंड और समथिंग, यू कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग देयर बिजनेस just by sitting at home. So these are some of the reasons why I feel it's a good career choice to have. Must have skills in digital marketing. Yes, I'm not saying everybody needs to, and ये मैंने point थोड़ा cover कर ही दिया. I'll just quickly go through these points. ये अगर आपको एक आता है या ज्यादा आते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें डेटा एंड डेटा एनालिसिस इज वन अगेन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल आपको आना चाहिए, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए, मेरे को लगता है एटलीस्ट शॉर्ट तो आनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो आपको एड्स, कॉपी और ये सब चीजें लिखनी आनी चाहिए। डिजाइनिंग आपको जरूरी नहीं है, बट कैनवा जैसे टूल्स जो बड़े यूजर फ्रेंडली होते हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ इस पार्ट में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग वगैरह के कोर्स देख रहा हूँ आजकल, तो डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आपको कम से कम, अगर कोई बना रहा है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्या इसमें ठीक है क्या इसमें गलत। वीडियो कंटेंट डेवलपमेंट, एडिटिंग जरूरी नहीं है सबको आनी चाहिए, बट अगर आपको आता है तो इट्स वेरी गुड, and this is something which will be demand right more in the future and right now also. HTML, CSS, JavaScript and other
computer tech languages. This is not very important, but it's good to have some basic idea. अगर नहीं आता तो it's not much of an issue. Usually technical लोग होते हैं कंपनी में, but जो मतलब ये ना एक्चुअली टेक्निकल के साथ ये भी इशू होता है कि कभी कभी ना वो जार्गन्स में इतना फंसा देते हैं आपको, या फिर वो ऐसे रीजंस आपको आते हैं उधर टेक्निकल टीम से कि आप अगर आपको बिल्कुल आइडिया ना होना तो आप बहुत आराम से फंस सकते हो। जो काम एक दिन में हो सकता है उसका वो एक हफ्ता लेकर गिविंग सम रीजन आपको आइडिया नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स गुड टू हैव सम नॉलेज, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये काम चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने उसको ये पेज में चेंजेस करने को बोले, अगर वो मुझे बोल रहा है 1 वीक, तो एज अ डिजिटल मार्केटर आई नो कि यार ये 1-2 दिन से ज्यादा का काम नहीं है, देन आई कैन पुट प्रेशर कि यार ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, ये काम जल्दी क्लोज। So this some idea should be there. You should be some level of comfort should be there when it comes to this. Marketing and campaign ideation. Obviously, you're a marketer, so it's very important. तो stories बनानी आनी चाहिए। आप एक product अगर sell करने को आपको किसी ने बोला है, तो आपको उसको कैसे present करना है, किस audience को किस तरीके से communicate करना है, ये skill भी होना is good in digital marketing. It's not exactly which will be taught to you in any digital marketing course, but do watch some videos on YouTube कि you know इस किस audience को कैसे communicate करना चाहिए। marketing के basics थोड़े बहुत ले लो, 4Ps वगैरह ये सब चीजें जो पढ़ाई जाती है marketing के अंदर। digital marketing मतलब एक engineer वगैरह अगर स्पेशली अगर करने घुस रहा है तो उसको एक बेसिक लेवल कोर्स मार्केटिंग में जरूर लेना चाहिए, मेरे को ये लगता है, बिकॉज इन द एंड इट्स डिजिटल इज वन पार्ट बट मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजिटल। सो इफ यू डोंट नो मार्केटिंग देन हैविंग अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम सैलरी में रहोगे और फिर ज्यादा। यस, सो अप टिल नाउ या सो या आई हैव कवर्ड most of the basic things. Now I'll move on to some challenges which I feel which are there in digital marketing role, and I mean I'm also talking to a couple of students. मैं थोड़ा बहुत बात कर रहा हूँ, तो it's not like everybody is so। एक student को तो मैंने ही अपने personally कुछ last week recommend करा कि it's not for you, मतलब they were trying something but उनको कुछ वो बिल्कुल ही अट्टे बट्टे कुछ पढ़ नहीं रहा था, तो उनके इसमें मैंने उनको बोला कि यार mind me, so there are some challenges, there are some things which are there in digital marketing role, which is very important. You should be aware of them. One is learning never stops, and there are quick changes. As our very engaged person Chitra in this team has suggested, that there are very quick changes, so you should be always be ready to keep learning. So as I said, 4-5 घंटे 3 घंटे कम से कम एक कोई ना कोई ब्लॉग अपने पसंद का ढूंढ लो। मॉस का है या गूगल का अपना ब्लॉग होता है, या वो सर्च इंजन हेल्पर करके एक होता है, एक नील पटेल करके एक आदमी है, उसको फॉलो कर सकते हो। एक ब्रायन डीन करके एसईओ के अंदर, इन लोग के ब्लॉग्स कुछ ना कुछ नया नया पढ़ते रहो, उनके वो न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन ले लो। 3 घंटे हफ्ते के अंदर 4 घंटे पढ़ो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। नेक्स्ट इज नॉट इनफ स्ट्रक्चर इन द कोर्स एंड करियर। मतलब कोर्सेज और इनके अंदर ना इतना इसके अंदर वो इतना ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई का होता नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें खुद सीखनी पड़ती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस, मतलब आप सिर्फ, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मतलब हम तो मास्टर बन जाएंगे और हमारे को इंटरव्यू तो क्रैक हम बहुत हमसे कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कोर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा नहीं पढ़ा सकता, आपको बहुत सारी चीजें खुद करके ही सीखते हो आप। और ये भी एक प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग में, सैलरी स्टार्टिंग अंदर कई सारे केस में लो होती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका, जैसे मेरे केस में हुआ था, मैं 30% कम सैलरी पे आया था अपने डिजिटल मार्केटिंग रोल का, सेल्स करता था उससे पहले। तो ऑल्दो वो जॉब इतना बढ़िया नहीं था उस टाइम पे, बट मतलब दैट रियली हेल्प मी बेसिकली गेट इनटू द फेज ऑफ थिंग, बिकॉज मैंने खुद बहुत चीजें इंप्लीमेंट करी थी उसके अंदर। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर आपको थोड़ा सा कम भी सैलरी मिल रहा है, बट आपको रोल अपने मतलब का डिजिटल मार्केटिंग में मिल रहा है स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज इसमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है।
इनफैक्ट अगर आप चेंजेस अगर करते हो ना इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में, तो काफी 30, 40, 50% की ग्रोथ, 60% की ग्रोथ भी सुनी हुई है इसके अंदर। 60%, 50% की भी हमने सुन रखी है। तो डोंट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द कोर्स, खुद भी पढ़ो और कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। Third thing is, in a lot of organizations you could be a bit lonely when it comes to, मैंने although job satisfaction की बात बोली थी, but starting के अंदर especially ना बहुत problem होती है डिजिटल मार्केटिंग रोल्स के अंदर, क्योंकि स्पेशली स्मॉल कंपनीज, बिकॉज आप ही कर रहे होते हो ये वाला काम, और आप एक तरीके से बिकॉज आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, और एज अ मार्केटिंग ऑलवेज सम कॉस्ट इज इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ कैंपेन चलाने होते। स्टार्टिंग के अंदर बहुत होता है कि आपका ऊपर कॉस्ट आप इनकर करे जा रहे हो, रिटर्न कुछ आ नहीं रहा है, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और वो सब चीजों का भी प्रॉब्लम होता है। आपको वो थोड़ा पेशेंस स्पेशली स्टार्टिंग के अंदर कैंपेन के अंदर बहुत जरूरी होता है। इट टेक्स टाइम, स्पेशली इन थिंग्स लाइक एसईओ वेयर यू आर डूइंग अ चेंज ऑन अ पेज, और 1 महीने बाद आपको उसका एक्चुअल इम्पैक्ट पता लगेगा। तो आप सोच सकते हो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी एसईओ वाले आदमी के लिए कि 30 डेज बाद उसके चेंजेस का उसको एक्चुअली में इम्पैक्ट दिखता है। वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, courses are there, courses are important, but work experience is very important. घुसो, करो चीजें, तभी जाके सीखोगे, वरना तो ये किताबें और ये कोर्सेज मतलब ठीक है। मेरे को बहुत अच्छी हेल्प मिली थी कोर्स से, मेरे को जॉब मिला था अपना पहला वाला, और मेरे को एक स्ट्रक्चर मिला था, मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, मेरे को बता दिया गया था ये चीजें पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बट उसके बाद काफी कुछ मैंने अपने आप ही करा था। आई डोंट थिंक कोर्स के बिना आपका चल सकता है, बट वर्क एक्सपीरियंस के बिना तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। इंक्रीजिंग कंपटीशन, लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये भी थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है आजकल। और इसमें एक चीज और होती है, आप सोशल मीडिया के रोल में आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि सब लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया में ना ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो तो हर बंदा आके आपको एडवाइस देना चालू हो जाएगा, यार ये ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। तो वो भी थोड़ा आपको बेयर करना हो सकता है इसके अंदर, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स देयर एन एक्सपर्ट, बिकॉज उनको लगता है कि इसमें कुछ चलता नहीं है, इसमें क्या है, ये क्यों नहीं करते। तो वो इंक्रीजिंग कंपटीशन और ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वे पीपल सर्च इज चेंजिंग, वॉइस सर्च एंड प्लेटफॉर्म। यस, एसईओ अभी गूगल पे हो रहा है, अभी फ्यूचर में जाकर अब ये वॉइस सर्च और ऐसी चीजें आ गई हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। मे बी आप आजकल गूगल कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, बट अगर आपको वॉइस सर्च और इसका आइडिया नहीं है, मे बी कुछ टाइम बाद ये रिडंडेंट ही हो जाए पूरा। इनफैक्ट गूगल ही इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है अब कि कुछ ट्रिक्स जो है ना बिल्कुल ही आउट ऑफ द गेम हो गई। तो ये भी एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस स्पेशली इन योर सर्च एसईएम रोल, विच इज बोथ एसईओ एंड पीपीसी। मतलब अगर आपके सोचो लोग, जैसे वॉइस सर्च का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वॉइस सर्च में जितना कहते हैं कि ये होगा कि इसमें जो टॉप का सर्च होगा ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के हो तो आपका रेलेवेंस बहुत गिर जाएगा अगर आप वॉइस सर्च के अंदर कर रहे हो। तो ये थोड़ा आपका गेम थोड़ा चेंज हो गया उस चक्कर में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसका ध्यान रखें, और व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग अ करियर इन दिस थिंग, यू शुड आल्सो लुक 10 to 15 years ahead कि क्या होने वाला है इसका। मेटावर्स इज वन मोर पॉइंट एज आई सजेस्टेड, चेंजेस इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही अपने आप में इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, चीज़ें एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत चेंज हो गया। आप एक पहले आई रिमेम्बर मैं आपको एक चेंज बताता हूँ जो इंडस्ट्री में हुआ है। पहले क्या होता था, अगर मैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालता था तो उसका, मेरे फॉलोअर्स अगर 10,000 है तो मेरे पोस्ट का व्यूज भी 6-7 हजार 8 हजार पहुंच जाते थे। उसमें क्या होता था, मेरे जो मेरे पेज का फॉलोअर है उसको मतलब दिख ही जाता था मेरा पोस्ट, ये होता था। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे और चीजें इन्वॉल्व हो गई, और फेसबुक भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रीडी हो गया है। तो ये होता है कि 2% से ज्यादा, अनलेस आपका कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग और AIB या TBS जैसा कोई कैंपेन हो तो वो अलग बात है, तो आपको 1 या 2% से ज्यादा वो रीच देते नहीं है। तो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 22,000 फॉलोअर्स होंगे लिंक्डइन पे भी, और मेरे जनरल पोस्ट के अंदर 1,000-2,000 से ज्यादा, अनलेस मैं पैसे ना स्पेंड करूं या कैंपेन बहुत ज्यादा बढ़िया ना हो, एंगेजमेंट ना हो उसके अंदर, तो वो पहुंचती नहीं है। 4,000 5,000 करने के लिए मुझे पोल्स चलाने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा एंगेजमेंट लाना पड़ता है उसके अंदर। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, और इसके लिए यू शुड बी अवेयर। और वन इज ऑब्वियसली मेटावर्स, विच इज प्रॉब्ली अ 10-year थिंग।
एंड प्रोबेबली वी शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स कि यार वो मतलब मे बी सोचो मेटावर्स एक आपके लिए एक वीआर प्लेटफॉर्म होगा, उसमें वर्चुअल रियलिटी चलेगी, तो आपके लिए एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर कैसे आप एडवर्टाइज करोगे, कैसे टारगेट करोगे, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी. तो these are some of the challenges. Next is replacement by AI simplifying the system for amateurs. So पहले क्या होता था ना, गूगल एड्स चलाना बिना किसी एक्सपीरियंस के बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट होता था. तो अब क्या हो गया ना, ये गूगल एड्स ने खुद, बिकॉज इस चक्कर में एंट्री बैरियर थोड़ा सा पड़ गया था, लोग हर बंदा एड्स नहीं चलाता, उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. तो वो एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट जो है ना कुछ लोगों के लिए कम हो गई है. तो दिस इज अ चैलेंज विच इज कमिंग, विच विल कम अप, विच आई सी कमिंग, कि इतना ऑटोमेट हो गया गूगल एड्स की, अब तो ये भी करते हो कि आप बस उसको पेज दे दो, वो अपने हिसाब से ही उसमें कॉपी भी बनाएगा, कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा और आपका ऐड भी चलाएगा. आपको बस ये बताना है, भाई मैं तो इतने पैसे दे रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, तो इतना कन्वर्जन ला के दे, वो ऐड चला दे. तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है पीपीसी में. इसमें भी मतलब इसमें आप बेसिकली, मैं एटलीस्ट इस पे कैसे खेल सकता हूँ कि प्रमोट करने के लिए, कि आप अगर वो 5 आपको देगा ना, मैं आपको 10 लाके दे सकता हूँ मैनुअली चला. तो वो थोड़ा सा आपको अपना इस चीज का थोड़ा देखना है कि ये चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करो आप. क्योंकि गूगल एड्स के अंदर अगर लेट्स से ऑटोमेट ही चल रहा है, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो ई कॉमर्स का काम करती है, उसने अब अपना मतलब पीपीसी के लिए ना अलग रोल नहीं बनाया. उनका जो जनरल मैनेजर है वही संभालते हैं, क्योंकि तो काफी ऑटोमेट कर रखा है, तो वो रोल थोड़ा सा अलग हो गया है. तो यू नो दीज आर द चैलेंजेस व्हिच यू नीड टू लुक एट, एंड एज आई सजेस्ट 10 से 15 साल का थोड़ा विंडो आप लेके चलो अगर आप कुछ चूज कर रहे हो. फ्रॉड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स इज आल्सो वन मोर चैलेंज इन डिजिटल मार्केटिंग. आपको लोग आके बोले कि हम आपके लिए कैंपेन चलाएंगे, हम आपको लीड्स लेकर आएंगे, हम आपको आपके लिए ट्रैफिक लेकर आएंगे, बट वो ट्रैफिक नकली होता है, वो लीड्स नकली होती हैं. तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंसेस पे जरूर जाओ, इसका ध्यान रखो. ये एक चैलेंज मुझे दिखता है काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में. तो इससे रेपुटेशन भी गिर जाती है एफिलिएट मार्केटिंग की. सब लोग नहीं करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इस चक्कर में, ऑल्दो कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे होते हैं. तो यू नो दिस इज वन चैलेंज यू व्हिच यू मस्ट सी. Involvement of tech people is decreasing a bit in digital marketing. This is also a challenge where things have become very easier to create stuff. तो टेक्निकल फुल एक्सपर्ट्स की थोड़ी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है. पहले एसईओ यूजुअली मैं देखता था कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही आके देखता था. अब लास्ट मुझे याद है मैंने एक कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उसने मुझे एसईओ के लिए जो पहले मेरे ख्याल से इतना नहीं होता था, उसने मुझे एक बहुत बड़ा ब्लॉग लिखने को बोला था, और मैं ऑनेस्टली बहुत कंफर्टेबल नहीं था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग में तब. तो पहले इतना नहीं होता, पहले टेक पीपल एसईओ को ज्यादा करते थे डोमिनेट. तो वो कीवर्ड लिख डालना अपना अलग अलग जगह पर, और वो बैकलिंक वगैरह बनाना, मतलब नॉन स्किल वाला थोड़ा रहता था. अब थोड़ा स्किल ज्यादा हो गया एसईओ के अंदर, तो आपको कंटेंट के लिए काफी कंफर्ट होना चाहिए आपके अंदर. तो ये एक चैलेंज मेरे को दिखता है. I think next point is also the same. SEO is becoming much more difficult. पहले it used to be very easy to rank your page. Honestly बताऊं तो systems भी होते थे कि आपने बस मतलब सॉफ्टवेयर आते थे कि आप पेज डालो, कीवर्ड डालो, और वही अपने आप बैकलिंक बनाता रहता था आपके. तो ये सब चीजें अब काम नहीं करती हैं. अब ये करते हो तो आप तुरंत पेनल्टी लग जाती है. तो SEO जो है डिफिकल्ट हो रहा है. इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पेड मीडिया, लार्जर बजट्स नीडेड. ये भी हो गया है कि जैसा मैंने बोला, फेसबुक और ये लोग 2% से ज्यादा रीच नहीं देते, तो आपको पैसा लगाना पड़ता है तो अपना पोस्ट को सही ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में. इंटरनेट पेनिट्रेशन इज स्टिल ग्रोइंग. ये भी है कि मैं जितना भी तारीफ करूं ये इसकी डिजिटल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी एटलीस्ट टीवी एड्स और ऐसी चीजें अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे एटलीस्ट जो लार्ज कंपनी आप देखो तो वो स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग से करती हैं. जो पहले छोटी होती थी डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगी, बाद में जाकर वो अपने टीवी एड्स पे ही आ जाते हैं. तो ये एक चैलेंज है डिजिटल मार्केटिंग में कि अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन और सोशल मीडिया ना उतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं. ऑनेस्टली बताऊं तो एक तरीके से आप इंडिया की 10-15% ऑडियंस को आप एंगेज कर पा रहे हो, बिकॉज वो समझते भी हैं और उनको चलाना भी आता है सॉफ्टवेयर. बट अगर आपको लार्जर ऑडियंस 50% 60% को अगर कुछ दिखाना है, तो आपको अभी भी टीवी एड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. तो इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है.
Yeah. So these are some of the challenges. One more thing which I want to discuss. This is just to show you web का क्या changes आया है in the starting. मतलब from starting to now क्या क्या changes आए web 1.0, 2.0, 3.0 जिसे कहते हैं आजकल आप सुन रहे होंगे web 3.0 आ गया है और अब तो बहुत टाइम हो गया है web 2.0 का आपने थोड़ा टाइम पहले सुना था. तो ये आपको थोड़ा आइडिया देता है कि क्या डिफरेंस हुआ है. मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मेरा क्या कहने का मतलब है. पहले क्या होता था वेब में कि आपकी अपनी वेबसाइट होती थी और आप स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी. आपका काम होता था इन्फॉर्मेशन देना वेब के थ्रू. किसी को मेरे बारे में कुछ जानना है वो जाके पढ़ ले. यहाँ पर ये ब्रोशर की तरह मेरा एक पेज बना हुआ है, उसको देखो. उसको वेब 1.0 कहते थे. मोस्टली रीड ओनली कंटेंट होता था उसमें कि कंपनीज अपना कंटेंट डालती थी कि हम ये लोग हैं, हम ये बेचते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए और अगर आप इंटरेस्टेड है इस नंबर पे फोन कर लीजिए. वेब 1.0 का एक फॉर्म होता था एक तरीके. इस पे यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस का चलता था, जिसको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चला. वेब 2.0 हुआ जब सोशल मीडिया आया. उसके अंदर बेसिकली ये अच्छा वेब 1.0 का एक और चीज बताता हूँ. पहले क्या होता था डायरेक्टरीज के बेसिस पे चीजें चलती थी. तो आप बेसिकली सर्च इंजन इतने एक्यूरेट नहीं होते थे. आपको डायरेक्टरीज में घुस के कि मेरे को इस कैटेगरी के बारे में ये चीज ये पेज के बारे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, यहाँ गया फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली. वेब 2.0 आया तो थोड़ा चेंज हो गया. उसमें ये गूगल का थोड़ा जमाना आया. उसके अंदर टैगिंग और कीवर्ड्स के बेसिस पे होता था. उसमें ये होता था कि बेसिकली मेरा अगर ये कीवर्ड पे रैंक कर रहा है ये वाला मतलब ये कीवर्ड में, तो जैसे मैंने एक कीवर्ड डाला तो मैं हूँ या कोई और बंदा बैठा हुआ है मेरे से 10 किलोमीटर दूर विद डिफरेंट इंटरेस्ट, उसको मेरे को प्रीटी मच सेम चीज दिखती थी. पहले ये होता था गूगल के अंदर. मतलब अगर मैंने जैसे जीमैट कोचिंग ढूंढा और तो मेरे को एक पेज आएगा और यही पेज जनरली दूसरे बंदे को भी यही वाला पेज ही दिखेगा और उसमें भी सेम वाले लिंक्स होंगे. तो ये बेस्ड ऑन टैगिंग बेसिकली सिस्टम सारा का सारा चलता था कि जो अपने आप को टैग करता था किसी कंटेंट के बेसिस पे वो अपीयर करता था उस कंटेंट के लिए अगर कोई सर्च कर. सोशल मीडिया में बेसिकली शेयरिंग कंटेंट का ये काम होता था कि आप अपना कंटेंट शेयर करते थे, लोग पढ़ते थे, ये वाली चीज होती थी. और एक तरीके से सेगमेंटेशन के बेसिस पे चलती थी चीजें कि यार आपको सेगमेंट किया जाता था और आपको चीजें दिखाई जाती थी. कम्युनिटी फोकस जिसे कहेंगे. वेब 3.0 जो अब हो गया है उसमें क्या हो गया, इंडिविजुअल का हो गया. हर आदमी का अपना अपना एक प्रेफरेंस पे वो फोकस करने लगे. तो मेरा कहने का मतलब ये गूगल का एग्जांपल देने का ये था कि अब यूजर बिहेवियर भी आ गया. तो मतलब मेरे को गूगल जैसी चीज जो है ना देखती है, ऑब्जर्व करती है, मेरी प्रेफरेंसेस देखती है और मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को मेरे फ्रेंड को सेम चीज दिखे सेम कीवर्ड पे सर्च करना. मेरे को अलग चीज दिख सकती है बेसिस मेरा क्या इंटरेस्ट है. तो इससे आप एसईओ का भी आप एक तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो. तो मे बी कंटेंट आप एक बंदे के लिए लिखो फिर आप दूसरे बंदे के लिए भी थोड़ा बहुत लिखो, तो वो आपको थोड़ा इस पे काम करना हो सकता है. यूजर बिहेवियर आप एक कैंपेन सबके लिए नहीं चला सकते हैं. आपको अपनी सेगमेंटेशंस प्रॉपर रखनी पड़ेंगी. आप मार्केटिंग ऑटोमेशन का हेल्प लेना पड़ेगा जहां पर आप कैंपेन्स को डिफर कर पाओ बेसिस बंदे का जो उसका इंटरेस्ट है. तो ये वेब 3.0 का जमाना है. इसके अंदर ये चीज हो गई है. लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब चीजें हो गई हैं. तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो आप थोड़े कंफर्टेबल रहो लाइव स्ट्रीमिंग और इन सब चीजों को लेकर कि आपको ये जैसे CQS अभी ये वेबिनार कर रहा है. तो दिस इज पार्ट ऑफ यू नो दीज डेज वेबिनार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग. बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग हो गया. आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको एड्स भी दिखते हैं. सबको सारे एड्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपके जैसे लोगों को ही आपके वाले एड्स दिखेंगे. तो बहुत ही कस्टमाइजेशन का जमाना है. एंड दिस वाज बेसिकली जस्ट टू हाईलाइट हाउ वेब हैज चेंजेस एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो टेकिंग शेप. सो या so this is my email ID. If in the future also if you want to discuss further or if you want to have any things to say want help from my side, you can always Yeah, are there any questions you can yeah So guys, anyone has any question you can ask to
Naman, you can ask any questions, any doubts you have in the session or outside the session topic in digital marketing. What are the challenges or the problems you are facing? You have any question, you are open to ask to Naman. Yeah, I'm seeing one question by Chitra. This was asked earlier. Communication skills can help in digital marketing, content writing. How can I excel? Content writing, how can I excel? So, content writing, how can I excel? Content writing के अंदर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज होते हैं. आप जनरल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से आप आई वुड नॉट सजेस्ट आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो. प्लस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं. और बेस्ट इज एज पर मी द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप खुद ही घुस के थोड़ा स्टार्ट करो. कंटेंट राइटिंग जितना मेरे को आइडिया है उसमें जितना मतलब एक प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी. कंटेंट राइटिंग का ब्लॉक होता है एक सबके दिमाग के अंदर. राइटिंग से ना लोग घबराते हैं. तो वो ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए जितना ज़्यादा लिख सकते हो आप लिखो. आप इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारे कोचेस एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस ब्लॉक को ओवरकम कैसे कर सकते हो. मतलब ऑनेस्टली मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो मेरे भी दिमाग में थोड़ा सा एक ब्लॉक आता है जब भी मेरे को कोई कुछ लिखने को बोलता है. और जब वो लिखना मैं चालू करता हूँ उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे को कि मैं परफेक्शन के लिए नहीं जाऊँ स्टार्टिंग में. कुछ भी लिखते हो आप लेट्स से मैं आपको एक अपना एक फंडा बताता हूँ. अगर मेरे को कभी भी ब्लॉक आता है, मेरे को कभी कभी कंफर्टेबल आई एम मोर कंफर्टेबल थिंकिंग ऑन आइडिएटिंग इन हिंदी रादर देन इंग्लिश. सो समटाइम्स व्हाट आई डू इज आई राइट वेरी बेसिक थिंग्स इन हिंदी अबाउट दैट टॉपिक. ठीक है, फिर उसको इंग्लिश में करके उसको ट्रांसलेट करके वैसे करके मैं उसको परफेक्ट करता हूँ. और कंटेंट राइटिंग में ना कभी भी मतलब मेरे से अगर पूछो तो कभी भी यू विल नॉट गेट द फर्स्ट अटेम्प्ट में यू विल नॉट गेट इट राइट. आपको बार बार लिखना होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एक्सेल इन कंटेंट राइटिंग कीप राइटिंग थिंग्स. एक ब्लॉग बनाओ अपना और इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसको प्रमोट करो. मतलब डोंट पुट मनी इनटू इट बट एटलीस्ट आप उस इंस्टाग्राम पेज में अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल के आप फॉलो करवाओ. तो इससे आपको और उसके एनालिटिक्स देखते रहो कि कितना मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है. तो आप सीखोगे उसके अंदर कि क्या लिख सकते हो. ऊपर से मैं आपको एक और बात बताऊं, एसईओ कंपनीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ्री में चाह रही हैं. मतलब एटलीस्ट बैकलिंक के पर्पज से वो आर्टिकल्स दिखवाना चाह रही है. तो डोंट गो फॉर मनी इन द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स उठा लो. फ्री में आपको बोल भी क्या सकता है ना आदमी, कितना भी खराब हो अच्छा हो क्या बोल सकता है. तो मैंने जैसे फ्रीलांस का एक करा था काम, तो एक दो फ्री में आर्टिकल मैंने ऐसे लिखे थे. मैं अच्छा था भी नहीं उस टाइम पे ना, अभी भी बहुत मतलब कंटेंट राइटिंग बहुत बहुत अच्छा स्किल नहीं है मेरा, बट ठीक हूँ मैं, मतलब इतना भी बुरा नहीं हूँ. तो उधर से बेसिकली मैंने अपना वो कॉन्फिडेंस ओवरकम किया था. एंड देन और इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए आप यूट्यूब पे कुछ मतलब वीडियोस वगैरह देखो. उसमें आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर स्टोरी राइटिंग वगैरह वो आप सीख लो. एक राइटर्स फॉर बुक्स कुछ करके बुक है, वो भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ. वो अच्छी बुक है. मैं आपको ईमेल आईडी ले लूँगा, आपको मैं मेल कर दूंगा. उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. तो अच्छी बुक है, आप उससे बेसिकली आप थोड़ा फंडामेंटल्स ले सकते हो. But yeah, it's good to go through a course or do some YouTube videos on content. I see she's shared her email ID. तुम्हारे कितने बच्चों ने ज्वाइन किया? Yeah. Any other questions? Anyone? You can ask to Naman. Write in chat box or you can unmute your mics and you can ask. No? Okay. Thank you so much, Naman, You have for my email this. ID. You can write on email also. Yes. What I'll do, I'll just collect the doubt questions if anyone of these have, and I'll share on your email so you can answer us back, and I'll definitely forward them back to the students. And thank you so much, Naman, for this wonderful and informative session. You have left no questions for us so that we can ask even doubts. You have covered thoroughly everything. Really a wonderful and amazing session. Right? So again, thank you so much. Thank you so much. Thank you guys.